Good afternoon, everyone. Yesterday we have discussed about seven types of gender inequality, and we have already read half of this essay. Today we are reading further. First of all, we just take a small introduction and a small recap of what we have discussed already. Okay. First of all, we come to know about Mr. Sen. Mr. Sen, who have got Nobel Prize also, and he also got Bharat Ratan for his wonderful deeds in every factor of life. And then we have discussed about this whole essay. What is there in this essay? We will discuss about the inequalities which spread in all over the world regarding the two sexes, male and female, gender inequality which spread all over the world. So regarding this we have read half essay, and in half of the essay, first of all we have discussed about the letter which Queen Victoria wrote to Sir Martin, and she was complaining about the movement of women right, and she want to say that women are strong enough, and they don't need any kind of these rights, which and to help a woman to achieve what she want to achieve in the life. Okay. Secondly, according to her, this kind of gender inequality is spread all over the world. हम इस बारे में कल डिस्कस कर चुके हैं. जेंडर इनइक्वालिटी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, एंड क्वीन विक्टोरिया के इसके लिए क्या व्यूज़ थे. देन we have discussed different kind of inequalities which spread in our world, and how these inequalities affect women's life. First, there was a inequality in mortality inequality, means death rate. There is a huge gap between the death rate of male child and a female child, and the first factor which Mr. Sen show us that is the death rate between male and female is very different. Okay, and because of this death rate, because because of this death rate, there is a huge gap between the population of male and female. ओके, मीन्स हमारी सोसाइटी में जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनकी डेथ रेट जो बॉय चाइल्ड हैं उनकी डेथ रेट से ज़्यादा है. बिकॉज ऑफ दिस देर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द पॉपुलेशन, एंड इफ द पॉपुलेशन ऑफ any you can say any gender or any class, so there is a huge gap between the facilities also. means अगर कोई भी जेंडर हो या मेल हो या फीमेल हो या कोई भी कास्ट के लोग हैं, अगर वो मेजॉरिटी में हैं तो उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं लाइफ में. एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये डेथ रेट इतनी ज़्यादा गैप में क्यों है? बिकॉज देर आर लेस फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन इन द हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट few facilities or less facilities, woman's child या female child is not able to survive for long. Okay, then second point क्या था? natality inequality. फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेथ रेट ज़्यादा है गर्ल्स की. सेकेंडली उन्होंने क्या बताया है कि बर्थ रेट भी ज़्यादा नहीं है. मीन्स अर्लियर क्या होता था? जब वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द न्यू बोर्न चाइल्ड, then there is not such a huge gap between the population. But now because of the technology we can able to find out the sex, and if we deduct the sex of the child, then the person and many of the people go for abortion, and they are not giving a woman to get birth in this world.
सो क्या है, बर्थ रेट भी गर्ल्स का कम है कंपेरेटिवली बॉयज़, जिसकी वजह से क्या है, इसमें गैप बढ़ता जा रहा है जो हमारी पॉपुलेशन है गर्ल्स एंड बॉयज़ की। ठीक है, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो उन्होंने, पहला डेथ रेट के बारे में है, सेकंड है बर्थ रेट के बारे में, जिसमें बहुत अनइक्वलिटी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो मेल हैं या जो मेल की जो सोसाइटी है या जो मेल पॉपुलेशन है, दे आर एबल टू डोमिनेट द फीमेल्स। एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मेनली जो सोसाइटी का जितना भी बर्डन है या जो भी वर्क का बर्डन है वो फीमेल्स को ज़्यादा मिलता है मेल के कंपेरेटिवली। मेल्स को उतना बर्डन, उतनी प्रॉब्लम सहन नहीं करनी पड़ती जितनी फीमेल्स को करनी पड़ती हैं। एंड इसका मेन रीज़न यही है कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। एंड इस गैप की वजह से मेल डोमिनेट करता है, एंड इफ़ ही इज़ डोमिनेटिंग देन ही इज़ गिविंग all the burden to the female community, and the female have to suffer all the things. The third point is basic facility inequality. Earlier हमने देखा है कि बर्थ और डेथ रेट में इतनी डिफरेंस है, देन जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वुमेन्स को वो भी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। एंड बिकॉज ऑफ द अनइक्वलिटी बिटवीन द basic facilities, girls or female is not able to grow and not able to show their inner talent, and because of this they are lacking behind. मीन्स जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। दैट्स वाई जो उनके अंदर टैलेंट है या जो भी वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हैं, दे आर नॉट एबल टू अचीव बिकॉज उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। एंड ये बेसिक फैसिलिटीज़ किस चीज़ से रिलेटेड हैं? सबसे पहले तो उनको घर में ही बहुत बाइसनेस फील करनी पड़ती है। फीमेल्स को उतनी जो गर्ल चाइल्ड है उसको उतनी आज़ादी, फ्रीडम नहीं मिलती, या उसको जो भी अपॉर्चुनिटी या जितनी भी फैसिलिटीज़ या जितनी भी चीज़ें बॉयज़ को प्रोवाइड की जाती हैं उतनी नहीं मिलती। सो क्या है, उनको लेस फैसिलिटीज़ में वो सब अचीव करना पड़ता है जो बॉयज़ को बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ अचीव कर सकते हैं। तो सिंपली इससे क्या होगा, उनके ऊपर वैसे ही बर्डन ज़्यादा बढ़ गया। सिंपली अगर आप हाउसवाइफ या इनका भी एग्जांपल लेके चलो तो उनको वो सेम वर्क करने में उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। उनको घर भी की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और बाहर अगर वो वर्क करने आना चाह रही है तो उसको बाहर की भी उठानी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो गया, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कि उनको राइट है कि वो जॉब कर सकें, इवन दो उनको वो फ्रीडम नहीं दी जा रही, तो क्या है, उनके पास ज़्यादा बर्डन आ रहा है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट थिंग है सोशल अपॉर्चुनिटीज़ में भी इनइक्वालिटीज़ है। फोर्थ पॉइंट है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हमने यहाँ तक रीड नहीं करा था तो आज हम ये रीड करेंगे। Even when there is relatively little difference in basic facilities including schooling, the opportunities of higher education may be far fewer for young women than for young men. Indeed, gender bias in higher education and professional training can be observed in some of the richest countries in the world in Europe and North America. Earlier we have discussed about बेसिक फैसिलिटीज़ मतलब उनको स्कूल जाने की भी परमिशन नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स को स्कूलिंग भी नहीं करवाई जाती, तो वो तो बेसिक हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी उनको प्रॉपरली नहीं दिए जा रहे। एजुकेशन का हर पर्सन को राइट है, बट बहुत सारी गर्ल्स अभी भी उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो अब वो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जब उनको स्कूलिंग की ही परमिशन नहीं है तो जो स्पेशल चीज़ें हैं, लाइक हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उसमें बहुत ही कम पार्ट है गर्ल्स का, एज उनको बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल पा रही तो वो हायर पे कैसे आएंगी। ठीक है, Sometimes this type of division has been based on superficial incongruous idea that the respective provinces of men and women are just different. This thesis has been campaigned in different form over the centuries and has had much implicit as well explicit followings. It was presented with particular
directness more than 100 years before Queen Victoria complained about what rights by the Rabbit James in the Sermons to Young Women, a book which, as Mary Wollstonecraft noted in her A Vindication of Right of Women, has been long made a part of women's liberty. सिंपली क्या है, अर्लियर क्या है, ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि ये डिसाइड कर दिया गया कि वुमेन, मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है, जब उनमें बहुत सारा डिफरेंस है तो उनको सेम फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्वीन विक्टोरिया से पहले ही ये चीज़ें प्रेजेंट करती, बट एज आप लोगों ने सुना होगा, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो हैं, उन्होंने वुमेंस के राइट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया था और उन्होंने ही पहली वुमेंस के राइट के लिए बुक लिखी थी। और उस बुक के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया है कि कैसे वुमेंस को डिफरेंट बता के उनको बेसिक फैसिलिटीज़ से दूर रखा जा रहा है, और उनको वो चाहती हैं कि उनको एटलीस्ट फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलनी चाहिए, so that they can prove that they are not that much different from a male. So ये काफ़ी इक्वल शेयरिंग की बात काफ़ी टाइम पहले से ही चली आ रही है, और इसमें क्या है, इसमें अलग अलग लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को शो किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल इनइक्वलिटी, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक फैसिलिटीज़ की इनइक्वलिटी और जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जानी चाहिए उनकी इनइक्वलिटी को पढ़ा है। अब क्या है, प्रोफेशनल इनइक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्रमोशन इन वर्क एंड ऑक्यूपेशन, वुमेन ऑफन फेस ग्रेटर हैंडकेप एंड than men. A country like Japan may be quite egalitarian in matter of demography or basic facilities, and even to a great extent in higher education, and yet progress to elevated levels of employment and occupation seems to be much more problematic for women than a man. Okay, what here the writer want to present कि देयर इज अ ग्रेटर, मतलब गैप है बहुत ज़्यादा, किसमें वुमेंस की एम्प्लॉयमेंट में या वुमेंस को जो प्रमोशन मिलती है या वर्क में उनको प्रेफरेंस दी जाती है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है, जापान जो हमने सुना है बहुत ही मतलब एक डेवलप कंट्री है और उसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत उनके प्रोग्रेस में और उनके इन्वॉल्वमेंट में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी वुमेंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती हैं इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। इन द इंग्लिश टेलीविजन सीरीज कॉल्ड यस मिनिस्टर, देयर इज एन एपिसोड वेयर द मिनिस्टर full of reforming jail is trying to find out from the immovable permanent secretary Sir Humphrey how many women are in really senior position in the British civil service. Sir Humphrey says that it is very difficult to give an exact number. It will require a lot of investigation. The minister is still instant and want to know approximately how many women are there in the senior position, to which finally replies approximately none. ठीक है, so what he is saying, he's means giving an example for his demonstration about this thing. वो जो उन्होंने अपनी बात बताई है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन प्रोफेशन ऑल्सो। सो उसके लिए एक एग्जांपल बताया, टीवी सीरीज आती थी यस मिनिस्टर, उसमें भी यही बात का इशू उठाया है कि सीनियर पोजीशन पे कितनी वुमेन्स हैं, और यहाँ पर उसके लिए क्या रिप्लाई मिला है कि बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेटली कोई भी नहीं है ऐसी जो बहुत ही अच्छी पोजीशन मिली हुई हो, सीनियर पोजीशन मिली हुई हो जिसको मिनिस्ट्री के अंदर, ये उस टाइम की बात है, ठीक है। तो क्या है,
दिस शोज कि वुमेन्स और मेल के बीच में, वुमेन और मेल के बीच में कितना डिफरेंस है इक्वल प्रोफेशनल जो हम लोग चांसेस दे रहे हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिक्स्थ जो है वो कौन सी इनइक्वलिटी है, ऑनरशिप इनइक्वलिटी। ऑनरशिप इनइक्वलिटी क्या है, इन मैनी सोसाइटीज द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी वेरी अनइक्वल, ठीक है। इवन बेसिक एसेट्स सच एज द होम्स एंड लैंड मे बी वेरी asymmetrically shared. The absence of claim to property can not only reduce the voice of women but also make it harder for women to enter and flourish in commercially, economic and even some social activities. This type of inequality has exist in most part of the world, though there are also local variation. For example, even though traditional property right have favored men in the bulk of India, in what is now the state of Kerala, there has been for a long time material inherency for a influential part of the community, namely the nayars. Sorry. सिंपली क्या है, ऑनरशिप में भी, ऑनरशिप जो प्रॉपर्टी की दी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। मीन्स मेल्स को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, जो भी हमारी हम लोग पुश्तैनी जो जायदाद बोलते हैं, पुश्तैनी जो प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, उसके अंदर वुमेन्स को इतना प्रेफरेंस या इतना पार्ट नहीं दिया जाता। और इसकी वजह से क्या है, वो अपनी लाइफ को इकोनॉमिकली और कमर्शियली ज़्यादा स्टेबल नहीं रख पाती, बिकॉज दे डोंट हैव एनी राइट इन एनी प्रॉपर्टी। इफ दे आर नॉट हैव एनी राइट, दे आर नॉट like financially balanced, they are not having a financially balanced life, as they don't have any right in the property, and because of that economic life of them is very unstable. So this is also a reason for domination of male over women, because women are not economically or financially stable in their life, ठीक है। Then household inequalities, we can relate everything in our day-to-day life only. We know all these factors जो इफ़ेक्ट करते हैं मेल और फीमेल की इनइक्वलिटी में, इन सब के बारे में हमने देखा भी है और जानते भी हैं, ठीक है। तो द सेम हाउस होल्ड की इनइक्वलिटी क्या है, हम अपने घरों में जो भी काम होता है, वुमेन्स को घर संभालना है, ये संभालना है, मेल्स को बाहर का संभालना है, तो क्या हो गया, अनइक्वलिटी हो गई। अगर वो बाहर का संभाल रही है, इवन दो उनको घर संभालना है, तो क्या हो गया, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर इक्वलिटी तो दी ही नहीं गई। देर आर चलो हम इसको रीड करते हैं। देर आर ऑफन इनफ बेसिक इनइक्वलिटी इन जेंडर रिलेशंस विद इन द फैमिली और द हाउस होल्ड विच कैन मेक मैनी डिफरेंट फोर्स, even in case in which there are not overt signs of anti-female bias in, say, survival or son preference or education, or even in promotion to higher position. The family arrangement can be quite unequal in terms of sharing the burden of household and child care. सो सिंपली क्या कह रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी जगह पे वुमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, फीमेल्स के लिए बाइस है हमारी सोसाइटी। तो द सेम उनको जो घर की अरेंजमेंट है उसमें भी इक्वल टर्म नहीं है, इक्वल शेयरिंग ऑफ बर्डन नहीं है हाउस वर्क और चाइल्ड केयर में। एज वी ऑल कैन सी इन अवर सोसाइटी, मेनली घर को संभालना, बच्चे को संभालना, सब कुछ का बर्डन किसके ऊपर आता है, वुमेन के ऊपर आता है। एंड वी आर सपोज टू लाइक कि इवन दो अगर एक वुमेन बाहर का काम कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी को संभालनी है सारी चीज़ें। मेल आर नॉट गोइंग टू टेक द सेम बर्डन एज फीमेल्स आर टेकिंग, ठीक है। तो द सेम दे आर सेइंग. It is, for example, quite common in many societies to take it for granted that while man will naturally work outside the home, women could do it if and only if they could combine it with various inescapable and unequal share household duties. So there, as I told you earlier also,
मेल का तो काम ही है बाहर करना, और अगर वुमेन भी चाहती है कि वो अपना कैरियर सेट करे या चाहे, तो उसको तभी ये चीज़ कर सकती है जब वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चले। उसको घर की ड्यूटीज़ तो संभालनी है, अगर वो बाहर की भी ड्यूटीज़ संभालना चाहती है तो उसको घर की ड्यूटीज़ के साथ वो चीज़ संभालनी है, उसको घर की ड्यूटीज़ से फ्री नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसलिए अनइक्वल शेयर हो गया, बर्डन सारा किसके ऊपर आ गया, वुमेन के ऊपर आ गया। दिस इज समटाइम कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, दो वुमेन कुड be forgiven for seeing it as a completion of labor. The reach of this inequality include not only unequal rations within the family but also derivative inequalities in employment and recognition in the outside world. Also, the established fixity of this type of division or accumulation of labor can also have far-reaching effects on the knowledge and understanding of different type of work in professional circle. Wherever I first started working on gender inequality in the 1970s, I remember being struck by the fact that the Handbook of Human Nutrition requirement of WHO in presenting calories requirement for different categories of people choose to classify household work as sanitary activity requiring very little development of energy. I was, however, not able to determine precisely how this remarkable bit of information have been collected by the patriarchal leaders of the society. Simply यहाँ पर क्या है, according to him, कि ये जो डिवीज़न है ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, लेबर बिल्कुल भी इक्वली जो वर्क का बर्डन है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, वुमेन्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाती हैं, जो उनकी सोशल या हम लोग प्रोफेशनल सर्कल में देख पाते हैं कि उनकी लाइफ में इसकी वजह से काफ़ी अनस्टेबिलिटी रहती है। एंड सेकेंडली क्या है, जो राइटर है वो क्या कह रहा है, जब मैंने इस फील्ड में वर्क करना स्टार्ट किया तब WHO की एक गाइडलाइंस मैंने पढ़ी थी, तो WHO की मैंने एक गाइडलाइंस पढ़ी थी और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या था, यही डिस्क्राइब किया गया था कि वुमेन्स जो घर का काम करती हैं उनको इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि उसको ठीक नहीं लगी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। टुमारो व्हाट वी विल डिस्कस, हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक बार और इसको शॉर्टली मैं इसको यू कैन से एक स्मॉल समरी के टाइप आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, सो दैट आपको इसके बारे में क्लियर आइडिया हो जाए और ये आपको क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन आंसर भी इससे रिलेटेड पूरे हो जाएं। ठीक है, सो गुड डे एवरीवन, कल मिलते हैं।